آپ نے خود کسی ایم این اے کو شراب پیتے دیکھا؟ نہیں، میں یہ آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھو دیکھتا تو میں کسی پہ پردہ نہ دیتا، یہ بھی آپ نے نہیں دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے نہیں آپ نے دیکھا، آپ نے بوتلیں دیکھا؟ میں آپ کو بتاؤں جو میں نے بات کی اسمبلی میں وہ پھر آپ کو میں نے کہا جناب اسپیکر کہ وہاں معزز ممبران ہیں رہتے ہیں اور لاجز کے اندر اگر ایسی حرکات ہیں جو میرے سامنے آئی ہیں، شراب ہے، لڑکیاں ہیں، یا اور ایک جگہ پہ کہیں ایک مجرے کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے، وہ بھی ایک ریکارڈ پہ آ جائے گی، وہ آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی، وہ کون ہے وہ خود گورنمنٹ فیصلہ کرے گی، میرے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ دیکھ لیں، تحقیقات کرا لیں، یہ برائی ہے، روک دیں۔ کسی کو نامینیٹ نہیں کیا، اس کو ایشو بنایا گیا کہ بغیر انویسٹیگیٹ کیے کچھ میں ایک بہت بڑا ذمہ دار ہوں، اگر میں ایک چیز کی برائی کی نشاندہی کر رہا ہوں تو سب کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ارد گرد اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، اگر کوئی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اس ٹائم پہ چیئرمین صاحبہ تھیں، جو چیئرمین صاحب نے اسپیکر صاحب تو چیئرمین صاحب تو بات نہیں، لیکن انہوں نے ایک ریمارک دیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے کیونکہ کسی کو نومینیٹ نہیں کیا، کسی کا نام نہیں لیا، جو جتنے 400 سے زائد ممبران وہاں پہ بیٹھے ہوئے سب مشکوک ہو گئے، وہاں فیملیز رہتی ہیں، خواتین ایم این ایز رہتی ہیں۔ ایسی بات دیکھو، بات اب تو ہر بندے کو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے۔ بات میری سنیں نہ، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو بات کی ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے اور کچھ پروف آپ کے پاس ہیں تو دے دیں۔ یہ اس نے وہاں چیئرپرسن صاحبہ نے یہ بات کی ہے اور اسپیکر صاحب نے خط بھی دیا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ حکومت کا جو نقطہ نظر آیا ہے، آج وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ سیکورٹی نے کلین چٹ دی، کچھ نہیں ہوا۔ وزیر داخلہ کی قومی اسمبلی میں سٹیٹمنٹ کے بعد ایک چینل کی ٹیم گئی وہاں پہ، ان نشاندہی کی اور میں ان کے ساتھ گیا، کافی مقدار میں شراب کی وہاں بوتلیں لاجز میں پائی گئی۔ اب میں نے بھی تو انہی چیز کی نشاندہی کی تھی، آپ نے بھی انہی چیز کی نشاندہی اب ان کو میں کہا کہ آگے بتاؤں گا کہ یہ چیز ہے، میں نے بتایا، اب آپ کے پاس اور آپ مزید ثبوت بھی دیں اور اس پہ مزید ثبوت بھی دیں، میں کہوں گا اس کو روک۔ ڈاکٹر حود بھائی صاحب، آپ نے بات سنی، میں نے خاص طور پہ اس لیے پوچھا تھا، ندیم پراچا صاحب بھی ہمارے ساتھ، ان کے پاس بھی جاتا ہوں، کہ آپ نے خود تو نہیں دیکھا، کیونکہ میں یہاں پہ حدود آرڈیننس کا آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو لکھا گیا ہے کہ اس وقت تک اسٹیبلش نہیں ہو سکتا جرم جب 2 آئی وٹنس نہ ہو جنہوں نے شراب پیتے دیکھا، جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے۔ اس موقع پہ جمشید دستی صاحب نے کہا ایک مسئلہ تو ہے، ہمارے ملک میں جو قانون ہے اس کے تحت شراب جو ہے بالکل جائز نہیں ہے، اس کو آپ نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس موقع پہ جمشید دستی صاحب کا بیان؟ دیکھیے، یہاں 2 بڑے مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ناکافی ثبوت ہے، اب خالی بوتلیں وہاں پائی گئیں، اب کیا پتا کہ یہ پہلے سے موجود تھیں یا وہاں رکھی گئی ہیں، ہمیں اس بات کا قطعاً علم نہیں۔ دستی صاحب نے ابھی یہ کہا کہ انہوں نے خود کسی کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا اور غالباً ان محفلوں میں بھی یہ شامل نہیں رہے ہیں، لہٰذا ان کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تہمت لگائی ہے تمام ایم این ایز کے اوپر، یا کم از کم ان ایم این ایز کے اوپر جو وہاں پر رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے مرد ہیں جو جب کسی بھی عورت کو دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں غلیظ قسم کے خیالات آتے ہیں، اور لڑکی جتنی بھی شریف ہو لیکن چونکہ وہ لڑکی ہے اس لیے الٹے سیدھے خیالات اس کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے نہ تو شراب نوش ہوتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی کوئی زناکاری دیکھی تو یہ سارے کے سارے مفروضے ہیں، مگر یہ تو لیکن ان کے پاس ویڈیو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈیو انہوں نے بنائی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گھروں کے اندر اسپائنگ کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں۔ انہوں نے شاید نہ بنائی ہو، کہیں سے ملی ہو۔ نہیں، اگر کوئی بھی اس طرح سے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی اور کے اپارٹمنٹ میں کسی گھر میں داخل ہو کر یہ جاسوسی کا کام کر رہا ہے، اور یہ خود ایک جرم ہے۔ لیکن جس بات پہ مجھے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، دستی صاحب نے کہا کہ ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ یہ قوم کے رکھوالے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کو یہاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے رکھا ہے، لیکن کاش کہ انہوں نے دوسرے مسائل کی بات کی ہوتی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے ساتھی ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کبھی شور مچایا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، ذرا بتائیے۔ بہت جی بتائیے، جو زرعی ٹیکس ادا نہیں ہوتی ہے
उसके ऊपर मतलब ये आपका कहना है कि जो असल मसला है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। जी बिल्कुल जी। मैं एक नदीम फराजा साहब से एक कमेंट ले लूं। जी नदीम साहब, आपने यकीनन फॉलो किया ये जो पिछले 2 दिनों से बहस चल रही है। जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके मैं इनपुट लेना चाहूंगा कि आप किस तरह देखते हैं इस मौके पे जमशेद दस्ती साहब का बयान, और एक नई बहस छिड़ गई और जैसे मैंने बात की कि 400 से ज्यादा एमएनए वहां रहते हैं, सब के सब मशकूक हो गए, तहकीकात होंगी, पता चलेगा कौन कसूरवार है कौन नहीं है, लेकिन अभी तक जो है हमें ऐसा ही लग रहा है कि अगर वहां पे कोई भी एमएनए है तो हम उसको शक की निगाह से देखने में, हक बजाने में। जमशेद दस्ती साहब के इस बयान के बाद क्या कहेंगे? जनाब मेरे ख्याल में तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो वहीं डिस्कस होते हैं उन कौमों में जिसका पेट भरा हुआ होता है, जिनके पास इतने बहुत बड़े और मसाइल नहीं होते। वो उनके पास इतनी लग्जरी होती है, इतना टाइम और स्पेस होता है कि वो इस तरह की मॉरलिस्ट बातें करें। हमारे पास मेरे ख्याल में ना उन चीजों का टाइम है, ना ये इशू है। अगर इसको कंपेयर किया जाए दूसरे हजारों सियासी, माशी और समाजी इशूज जो हमारे इससे ज्यादा बड़े हैं। नदीम फराज साहब, आपने दिसंबर में एक कॉलम भी लिखा जिसमें आपने ये मेंशन किया कि अप्रैल 1977 में शराब पर पाबंदी आयद की गई। उससे पहले लाहौर में भुट्टो साहब ने तकरीर करते हुए कहा होगा, सबसे बड़ी बात है ये 77 के इलेक्शन से पहले ही भुट्टो साहब पे भी एक्यूजेशन लगाया गया, ठीक है। वो पीते थे और वो बिल्कुल छुपके नहीं पीते थे। उन्होंने पंजाब में एक रैली में तकरीर करते हुए ये कहा कि हाँ मैं पीता हूँ लेकिन लोगों का खून नहीं पीता। बिल्कुल नदीम साहब, आप इधर ही 1 मिनट रुकिएगा जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद दस्ती साहब, डॉक्टर परवेज हुदबाई साहब, नदीम फराजा साहब, और बात कर रहे हैं जमशेद दस्ती साहब के उन इल्जामात की जो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट लॉज से शराब, चर्स और हत्ता के लड़कियां भी बरामद होती हैं। जमशेद साहब, एक चीज की क्लैरिफिकेशन, और आपने एक तो ये बात हो गई, आपने सबूत भी पेश कर दिए। आप बाद में देख रहा था, आप झाड़ियों में से आपने वो बोतलें भी निकाली, मीडिया ने उसे कवर किया, बहुत पब्लिसिटी उसे मिली। आपने एक और जो फ्लोर पे बात की, आपने कहा कि 5 करोड़ की शराब सालाना लाई जाती है। ये एस्टिमेट कहां से आया? सालाना की बात नहीं थी, देखो ना, सालाना नहीं थी। मैंने कहा ये आपने फिगर से देखो, अरसे से मैंने कहा ये सिलसिला जारी है जो कुछ लोगों ने हमें वहां बताया। देखो फिर कहूंगा कि गरीब लोग हैं, आम एहलकार हैं, हम किसी को ओपन नहीं कर सकते। और जो चीजों की उन्होंने निशानदेही की मैंने असेंबली में बता दिया, जो वीडियो में जो मिली वो भी मैंने सबकी भी बात नहीं की। मुझे आप ये समझाएं, ये बात करके आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितनी तरक्की ले आएंगे। और आम आदमी की आप बात करते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ ये क्या एमएनए शराब पीते हैं? पाकिस्तान में जो हमारे पास हर दिन के हर साल ये जो केसेस आते हैं अंधे होने के, से मेरा भाई मेरी आप आदमी मेरी बात आप मेरी भी सुनिए। देखिए आपकी सोच के देखें, वो आपका नुकता है कि आप जो फरमा रहे हैं, जो मेरे जो कुछ देखा है मैंने उसका बयान किया है। अब अफसोस के मैं किसी का शराबी का ना वकील हूँ ना मैं किसी का मुखालिफ, मेरी रब जाती दुश्मनी है। जब मुजफ्फरगढ़ में अगर कभी अल्लाह आपको मौका दे, एक मिनट मुजफ्फरगढ़ अल्लाह आपको मौका दे, आप आए तो मैं इन बुराइयों के खिलाफ जिहाद करके एमएनए बनाऊं। जो अरबपति जगीरदार शराबी भी थे, कबाबी थे, जिंदा औरतों को दफन करते थे, वो खा रहे हैं वो नवाबजादे। आप कभी आके देखें, इन बुराइयों को खत्म करके एमएनए बनो। अगर यहाँ भी बुराई थी तो निशानदेही की। जमशेद दस्ती साहब, आप बुराइयों का जिक्र घर से जिहाद किया, अपनी कौम कबीले से, जहां मनशाद बुराइयों का जिक्र करते हैं, मुजफ्फरगढ़ आप भी कहने की बात एक मिनट बात करो, बात में उन बुराइयों के खिलाफ डटा हूं तो लोगों ने, शुरफा ने मुझे वोट दिया, गरीब मजलूम ने दिया है, और मैं अरबपतियों को हरा के तो ये भी बुराई थी, मैंने बताया। आपका जो सियासी मुझे धोखा है कि पहले मेरे से पूछो। दस्ती साहब, आपका जो सियासी माजी हमारे सामने है कि आपने काम किया, बिल्कुल यकीनन बहुत बड़े लोगों को हरा के, बहुत बड़े लोगों को हरा के। एक सवाल करना चाह रहा हूँ, एक सवाल, क्योंकि पहला सवाल भी मेरा रह गया, वो भी करूंगा। डॉक्टर साहब को एक मौका दे दूं, उसके बाद फिर आपसे सवाल करता हूँ। क्विकली डॉक्टर साहब। जी दस्ती साहब, आपने जो इल्जामात लगाए ना बड़े संगीन किस्म के हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत आला किरदार भी होना चाहिए। लेकिन मैंने जो सुना है, और आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी डिग्री जाली तो नहीं थी जिसकी बिना पर आपको पार्लियामेंट से रिजाइन करना पड़ा, निकाल दिया गया? तो अगर किसी शख्स के किरदार में एक इतनी बड़ी खराबी हो, क्या ये दूसरों के ऊपर इल्जाम धर सकता है? जी दस्ती साहब, इसको भी एक्सप्लेन करें। बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब, मुझे पता है, मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है, पहली चीज तो आप किसी की वकालत कर रहे हैं इन माफिया की,
शराबियों की इनको पर्दा दे रहे हैं। दूसरी चीज है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो, आपको ये बता दूं, बोलते हैं कि आप सवाल सवाल के जवाब इस मामले में गुस्से हो गए ना? नहीं गुस्से हो गए। मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब जवाब लेने जी जवाब दीजिए। मेरे साथ कम अज कम जो इस तासुब से पाक आदमी आप बिठाते ना, जो तो मजा होता। मेरे जो दोस्त मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके अंदर में कुछ है, मैं उस पर तफसील में नहीं जाना चाहता। डिग्री जब सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस आया, वो एक नीचे हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में जो इलेक्शन कमीशन का एक आइन ट्रिब्यूनल था, उसको बाईपास किया। नवाबजादा नसरुल्लाह का बेटा वहां भी था, ऊपर भी आया। लार्जेस्ट बेंच में जब केस का फैसला होने लगा, एक बड़ा इजाज भट्ट जो जस्टिस रमदे साहब का समधी था, उसके 7 अरब पकड़े और जरदारी को भी ठुकराया। पीपल्स पार्टी की वजीर आजम की भी नहीं मानी, अहमद मुख्तार का बहनोई था, उसकी भी मैंने नहीं मानी, उसको कटेरे में लाया। उसके बाद पार्टी ने कहा कि रिजाइन करो। सुप्रीम कोर्ट में मैंने रिजाइन किया पार्टी के कहने पे कि इफ्तिखार चौधरी हमारा मुखालिफ है, और क्या थी, गिलानी साहब की साजिश थी, और अपने भाई को ले आया। फिर मुझे हाई कोर्ट ने कहा आपकी डिग्री ठीक है, फैसला किया, मैंने इलेक्शन लड़ा, जीत आया। बाद में मेरा केस चल गया, उसके बाद सजा हुई। हाई कोर्ट के 2 जज बैठे, पूरा यूनिवर्सिटी का सबका रिकॉर्ड आया, मुझे क्लियर किया। जो जेरी डिग्रियों वाले थे उनको इलेक्शन से रोका गया और जमशेद दस्ती को बाइज्जत बरी किया। बरी के बाद मैं 2 सीटों पे अरबपतियों को, नवाबों और खरों को एक बुरी शिकस्त देकर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बिल्कुल आपने एक्सप्लेन कर दिया पोजीशन। उस तरफ लाजो जब उस पे मेरा ये बिल्कुल आपने एक्सप्लेन कर दिया। दस्ती साहब, शराब जी मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं ना, मैं इनके बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल आपने सही बात की। मेरा जो सवाल था, मेरा जो सवाल, देखो मैं अपना सवाल कर रहा हूं ना, डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया, आपने पोजीशन एक्सप्लेन ऐसे करें ना, मेरी बात सुनो जी, सवाल ऐसे करें जी कि भाई ये चीज है, मैं उसी पे आ रहा हूं। मुझे आप ये बता दें, मत इन चोरों पे जो भी है, जो शराब लेके जा रहे हैं उन पे पर्दा। मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं ना, मुझे बताएं कि आपने कहा कि जी 5 करोड़ का एस्टिमेट आपने फ्लोर पे दे दिया, आपने कहा आप बहुत जिम्मेदारी है, आप बहुत जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब ने एक सवाल किया, आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपने जागीरदारों को हरा के, डिग्री आपकी बिल्कुल ठीक है, हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े हो गए 5 करोड़ रुपए का, ये फिगर कहां से है? ये जो इन्वेस्टिगेशन इससे भी ज्यादा है, इन्वेस्टिगेशन करें। आपके पास कहां से है? मैं कहता हूं है ना, प्रूफ दूंगा ना उनको, जाके जब शुरू करेंगे। पहले तो जमशेद दस्ती की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इन पे जो फरिश्ते हैं या आसमानी मखलूक है, इन पे इल्जाम लगा लिया। इस मुल्क में गरीब को डाल देते हो, किसी गरीब की चादर चारदीवारी को देखते हो, सबूत है, वीडियो भी है, ये शराब की बोतलें वहां पड़ी थी। आप स्पीकर साहब को कब दे रहे हैं? स्पीकर उसको अपना इंशाल्लाह सुमार वाले दिन उसको देना, लेटर लिखा है। मगर स्पीकर को कहूंगा कि इस पे हाई कोर्ट का एक आजाद जज पे मुश्तमिल कमीशन बनाए, और सिक्योरिटी के लोग हैं विद ओथ। नबीर गपोल ने मेरी बात की तईद की, जहरी साहब ने की, और भी एमएनए ने मुझे आज बताया कि हमारे पास भी काफी चीजें हैं, हमने ठीक है इसको आगे लेके आएंगे, बताएंगे, और उन पे एक्शन होगा। हुकूमत इस पे पर्दा दे रही है और ऐसे लोग बिठा रही है टीवी टॉक शो पे जो मंशात फरोशों की सरपरस्ती कर रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हुकूमत इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ इस्लामाबाद कैपिटल टीवी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मजहर तुफैल साहब मौजूद है। मजहर तुफैल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर हूद भाई भी हैं, नदीम फराचा साहब भी हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ, उन्होंने बताया कि वो सोमवार को स्पीकर साहब को वो सबूत देंगे, और उसके साथ उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की जिस सतह पर एक इंक्वायरी बिठाई जाए ताकि पता चले कौन मुजरिम है कौन नहीं है। आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, हल्के में बहुत काम किया जस्टिस साहब ने, इन्होंने जागीरदारों को शिकस्त दी, बहुत करते हैं, अवामी आदमी हम देखते हैं, इनकी वीडियोस अक्सर आती रहती हैं टीवी चैनल्स पे। तो हल्के में आप उनके गए भी, आपसे मेरे पहले बात हो रही थी, आपने कहा आपने उनके हल्के में काम भी किया है, देखा भी है, वहां पे रिपोर्टिंग भी की है, तो यकीनन जमशेद दस्ती साहब वाकई इतने मकबूल हैं? थोड़ा सा हमें बता दें। शहजाद, पहली बात तो ये है कि हमारा जो मजहब है वो भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी की भी किरदार कशी की जाए। दूसरी बात ये है कि मॉरली और एथिकली भी अगर देखा जाए, और जो सोसाइटी की हमारी डायमेंशन जो बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंच गई है, वो यही है कि हम फौरी तौर पे लोगों की किरदार कशी शुरू कर देते हैं, अपने अंदर नहीं देखते कि क्या खराबियां क्या हैं, और पूरे सिस्टम को और हर एक को लपेट में ले आते हैं। अगर कोई शराब पी रहा है या कोई बदकारी कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, और अगर इन हाउस अपने कर रहा है, तो अगर इस्लाम का बगौर आप मुताला करें, उसका जायजा लें, तो वो आपको इस चीज की। अच्छा, मजहबी बहस में नहीं पढ़ रहे मजहर साहब मैं आपको रोकना चाहता हूँ। बिल्कुल कुरान पाक में लिखा गया, बिल्कुल मजहर साहब मजहबी बहस में नहीं, बड़ा दुख है मजहबी बहस में नहीं, जो मेरा सवाल है उसका जवाब मुफ्ती साहब को मेरे साथ पे लगा दिया यार, आप समझदार
बोलने नहीं दुनिया दे ने रहे। पूरी जाहिर है। दुनिया ने نہیں بولنے نہیں دے رہے کہ یار غلط بات پہ غلط بات وہ کر رہا ہے. اسی صاحب نے آپ کو موقع دیا، پورا موقع دوں تو گا. تھوڑا سا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، ہمت پیدا کریں. لوگوں کے اوپر جب آپ کرٹیسائز کرتے ہیں 18 کروڑ اچھا مظہر طفیل صاحب، مظہر طفیل صاحب مظہر طفیل صاحب تو مجھے صحافی بھی نظر نہیں آ رہے.